મુકેશ ગોયલના વિરુદ્ધમાં ખોટી ન્યૂઝ ચલાવીને કોઈ પણ જાતના આધાર વગર કે જેઓ એમના જે ફ્રીલાન્સિંગ પેલા માણસો બે જણા હતા પઠાણ નાજી તથા પઠાણ મુખ્તાર એ આપણે સ્ટ્રેંગર આપણી ભાષામાં કહેવાય મીડિયાની ભાષામાં એ અમારા કાયમી એમ્પ્લોય નથી એ ખાલી મીડિયામાં જઈને મીડિયા કવરેજ કરે તો એનાથી એમની જવાબદારી થતી નથી કોઈ મીડિયાનો એમ્પ્લોય જાય અને કંઈ બીજું કૃત્ય કરીને આવે એમાં કોઈ આપણે ન્યૂઝ ચેનલ એનો જવાબદાર લીગલી થતો નથી એમ તો મારા ચીફ એડિટરે કહ્યું મુકેશ ગોયલે કે એમને લોકોનો ખોટો ઉપયોગ કરેલો છે અને એમની સામે તો કાર્યવાહી થઈ ગઈ છે ફરિયાદ થઈ ગઈ છે પણ મૂળ શું છે કે અમને ગુજરાત રફતારના ચીફ એડિટર મુકેશ ગોયલની બદનામી કેવી રીતે થઈ એ માટે વાત છે એમની બદનામી કરી એ બે ન્યૂઝ ચેનલે અને એમને પૈસા ભણાવવા માટે એમને વેપારમાં નુકસાન થાય અને એમની છબી ખડવાય લોકોમાં એ આશેથી આ ખોટો કૃત્ય કરેલો છે આ ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યા પછી ન્યૂઝ ચેનલમાં માધ્યમ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ આવ્યા પછી એમને આ મેં નોટિસ મોકલી છે 23/1/2025 રોજ મેં નોટિસ મોકલી છે એમાં 3 દિવસનો મેં સમય આપ્યો છે 3 દિવસનો સમય એમનો પૂરો થઈ ગયો છતાં એમનો કોઈ રિવર્ટ આવેલો નથી પણ એમને જ્યારે આ બંને જણાએ ચેનલમાં આ ન્યૂઝ ખોટી રીતે આપી પછી અમારા ગુજરાત રફતારના એડિટર ચીફ એડિટર મુકેશ ગોયલને ઉપર લોકોના ફોન આવ્યા કે ભાઈ આ શું છે હકીકત શું છે કે આવું કેમ આવી રહ્યું છે એટલે એમણે એનો ખુલાસો કર્યો કે આ ખોટી ન્યૂઝ છે આવું કંઈ બન્યું નથી એ કે ફ્રીલાન્સર જે બે માણસોએ આવું કૃત્ય કર્યું છે એ હમણાં એમ્પ્લોય નથી એવો ખુલાસો એમને કર્યો અને સોશિયલ મીડિયાના બીજા તમારા બધા મિત્રોના બી એમને ફોન કર્યા છે આ ઘણી બધી ન્યૂઝોના મેં આ ન્યૂઝમાં મારા નોટિસમાં મેં લખેલું છે એના નામ બી લખેલા છે એટલે આવી રીતે સમાજમાં એમની બદનામી થઈ સોશિયલ મીડિયા મારફતે તમે જાણ્યું બધાએ જાણ્યું હકીકત જુદી હોય અને લોકો તો શું ખોટું સર્જે તો આ રીતે એમની બદનામી થયેલી છે અને જે રીતે એમને કહ્યું કે એમનો વેપાર છે કાપડનું એમાં એમને ઘણા બધો કરોડો રૂપિયાનો વેપાર એ કરે છે તો એમાં બી વેપારી લોકોને બી ખોટી છાપ ઊભી થાય સમાજમાં થાય એ બી સારા સમાજના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છે અગ્રવાલ સમાજમાં સારી સેવા આપે છે ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં જોડાયેલા છે અને આ બી સેવાનું કામ છે સોશિયલ મીડિયાનું કામ કરવું લોકોને જાગૃત કરવા અને લોકોને ન્યૂઝ બતાવવા લોકોને આઈનો બતાવો એ પણ એક સારામાં સારું કાર્યકર્તાની કામ છે જે આ ભાઈ કરી રહ્યા છે મુકેશભાઈ ગોયલ તો આ મેં નોટિસ આપી છે એમાં મેં બધી હકીકત લખી છે એમને જે કહી એ રીત મુજબની એટલે હાલમાં એમને કોઈ રિવર્ટ કર્યું નથી એટલે કાયદો એવું કહે છે કે તમે કોઈ પણ વસ્તુને સ્વીકારી લો અને ચૂપ રહો ના માનો તો એ વાત મારી નોટિસની વાત સાચી થઈ તમને કોઈ માણસ એમ કે ભાઈ તમે ખોટું કામ કર્યું છે તો તમે એમને વિરોધ કરો અને એમનો રિવર્ટ કરો ઉત્તર આપો કે ના મેં આવું કર્યું નથી તો એ તમારો એનો ખુલાસો બી થાય અને બચાવ બી થાય પણ આની અંદર એમને 3 દિવસમાં કોઈ ખુલાસો કર્યો નથી કોઈ બચાવ કર્યો નથી એટલે એ વાત તો માનવાની રેકોર્ડ ઉપર આવશે કે એમને જે કર્યું છે સાચું કર્યું છે અને એ રીતે હવે અમારે બદનક્ષી જે થઈ મારા ભાઈની એટલે મુકેશ ગોયલની રફતાર ગુજરાતના ન્યૂઝ એડિટરની તો એટલે એમને હવે અમે આગળ બદનક્ષીની ફરિયાદ કરીશું એમને પોલીસ ફરિયાદ તો કરેલી જ છે આગળની હવે લીગલ પ્રોસિજર કરવાનું અમે વિચારી રહ્યા છીએ ધન્યવાદ पर्सन को लेके हम कोई भी मीडिया को या कोई भी बैनर को बदनाम करें तो ये सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये एफआईआर हुई है जो 2 बंदों पे नाजिम पठान और रुखसार पठान इसको लेके काफी विवाद चल रहा है और इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये रफ्तार गुजरात के रिपोर्टर मतलब जो फरियादी है उसको बाकी कुछ नहीं पता लेकिन रफ्तार गुजरात का नाम उसको कंठस्थ याद हो गया है बेसिकली उसको ये नहीं पता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है लेकिन उसको रफ्तार गुजरात 10 बढ़ा के बुलवाया जा रहा है और जो ये पर्सन है जो फ्लैश एंड लाइव करके जो सन्नी सोरत करके बंदा है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नाजिम पठान है ये पहले उसी के साथ में ही काम करता था और आप लोगों को मैं सबको चीज़ शेयर भी कर दूंगा इसके अंदर में उसके जो आईडी कार्ड जो फ्लैश एंड के थे उस पर नाजिम पठान का फ़ोन नंबर तक मेंशन था तो उन लोगों के पर्सनली इश्यूज के चलते कुछ इश्यूज आपस में हुए वो वहाँ से निकला वो स्टिंगर तरीके से काम करता है और उन्होंने रफ्तार गुजरात का दिखा रहे हैं स्टार क्राइम चैनल का उसका आईडी कार्ड है प्रेस आईडी कार्ड है रफ्तार गुजरात का कोई आईडी कार्ड इशू नहीं किया हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में स्टार क्राइम का आईडी कार्ड था अभी 3-4 दिन पहले स्टार क्राइम ने उसको
अपना एक सोशल मीडिया पे डाल के कि भाई अब हमारा वो स्टार क्राइम का रिपोर्टर नहीं रहा, ये एक उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है। तो वो स्टार क्राइम का एक रिपोर्टर था, उसके अलावा वो अहमदाबाद पोस्ट में भी काम करता था। तो और दूसरी जो रिपोर्टर जिसको हमने स्टिंगर तरीके से हायर किया, रुखसार पठान, वो भी फुल टाइम रक्षक सेवा समिति NGO यहाँ पे काम करती है एज ए स्टिंगर। हमने उसको 13 दिसंबर 2024 को हमने उसको ये हम पूरा फॉर्मेलिटीज़ का फॉर्म के साथ में हमने उसको एज ए स्टिंगर रखा था, जो हम स्टोरी बेस के ऊपर जैसी स्टोरी होती थी जो भेजते थे, हम चलाने लायक होती तो हम चलाते, नहीं तो नहीं चलाते। ये हमारा पूरा फॉर्म है जिसके अंदर में हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कोई भी मांगनी है किसी भी तरीके की, अगर आपने कोई भी गलत चीज़ की तो आपको इमीडिएट बेसिस पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही 9 जनवरी को हमारी नॉलेज में जब आया कि कोई ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसके अंदर में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके और PSI क्राइम बन के उन्होंने कोई किसी को धमकाया या कोई भी उन्होंने बात की, तो हमने इमीडिएटली 10 तारीख को उनको सस्पेंड और टर्मिनेट करके उनका ID कार्ड जो रुखसार को इशू किया हुआ था, नाजिब पठान को कोई ID कार्ड इशू नहीं किया हुआ था। राजीव पठान के पास में हमारा माइक ID था, वो हमने उससे ले लिया और उनको हमने बोल दिया कि हमारा अब आपका रफ्तार गुजरात से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा उसके बाद में उन लोगों ने हमारी जो रजिस्टर्ड लोगो है हमारा रफ्तार गुजरात का, उसको उन्होंने एडिट करके और वॉइस के साथ में मेन स्क्रीन पे माइक लोगों के साथ और नीचे रफ्तार गुजरात का बॉय रिपोर्टर ने मांगनी की, इस तरीके की स्टेटमेंट्स उन्होंने लिखी। तब हमने उनसे क्लैरिफाई किया कि भैया रफ्तार गुजरात का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली वे में हमारे को धमकी दी और उन्होंने कुछ टाइम के लिए 8-10 घंटे के लिए उन्होंने बैनर चेंज करके दूसरी न्यूज़ भी चलाई, क्योंकि मेरा रफ्तार गुजरात के साथ साथ मेरा कपड़े का भी व्यवसाय है जो सफलपन मार्केट में है। तो उनको ये बात ऑलरेडी पता थी सनी भाई को, तो इनडायरेक्टली वे में उनकी कुछ डिमांड थी या इनडायरेक्टली वे में हमारे को वो कोई मैसेज देना चाहते थे। फिर उन्होंने 8-10 घंटे के बाद में वापस से वो जो उन्होंने प्राइवेट की थी उसको न्यूज़ को उन्होंने पब्लिश कर दिया। सो सबसे मेन चीज़ क्या है, हमने उनको ये बोला कि भैया इसमें रफ्तार, उन्होंने जो ऑडियो क्लिप हमने से सुनी उसमें उन्होंने महिला ने जो रुखसार पठान है उन्होंने PSI क्राइम ब्रांच बन के बात की, उसके अंदर में रफ्तार गुजरात का नाम दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई रफ्तार गुजरात को इसमें क्यों हाईलाइट किया गया उन लोगों को? रफ्तार गुजरात का आज वो स्टिंगर तरीके से थे। और दूसरा, आप सभी पत्रकार भाइयों से मेरी एक गुजारिश ये भी है कि आज जर्नली अगर हम देखते हैं कि कोई भी आज रिपोर्टर तरीके या कोई भी किसी भी पद पे अगर आज कोई भी पत्रकार काम करता है, तो अगर वो कुछ भी गलती करता है तो हमारा दायित्व ये बनता है कि जो हम उसके ओनर हैं या चैनल हेड हैं उसको हम ये चीज़ पहले इंटीमेट करें कि भैया तुम्हारा बंदा इस तरीके की हरकत कर रहा है जो इलीगल है। तो वो आपकी नॉलेज में, अगर वो हमारी नॉलेज में डाले और वो हमको अगर कोई भी चीज़ प्रूफ देते हैं तो हम खुद में साथ में चल के पुलिस में उसकी कंप्लेंट करानी चाहिए एज ए चैनल हेड, एज ए चैनल ओनर। बट उन्होंने डायरेक्टली न्यूज़ को पब्लिश किया, रफ्तार गुजरात को जानबूझ के हाईलाइट किया, उसको बदनाम करने की कोशिश की, जबकि जो बंदा दूसरे न्यूज़ चैनल का ID कार्ड यूज करके दूसरे न्यूज़ चैनल्स के अंदर में भी रिपोर्टिंग करता है, उसमें खाली रफ्तार गुजरात को हाईलाइट करने का क्या पर्पज है? वो आज मैंने उन्होंने एक और न्यूज़ पब्लिश की, जब उनको शायद पता लगा होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनका जो फरियादी है सिकंदर, वो बंदे ने 10 से 15 बार रफ्तार गुजरात के नाम को हाईलाइट किया और उनके जो ओनर है फ्लैश हैंड के, वो उसमें ये बोल रहे हैं कि फरियादी ने इतनी इंक्वायरी करके, वो पेपर दिखा रहे हैं, फरियादी ने इंक्वायरी की, सर्च आउट किया कि वो कौन से न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर है। तो फरियादी को मैं ये जानना चाहता हूँ कि फरियादी को प्रॉब्लम रफ्तार गुजरात से थी या बंदे से प्रॉब्लम थी उनको। सेकेंडली, एक चीज़ मैं पुलिस प्रशासन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आज इस मामले को मैं चाहता हूँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, जो भी इसके अंदर में दोषी हैं, जो भी ये स्टिंगर तरीके से जो काम करते थे, रुखसार पठान, नाजिम पठान, उनके खिलाफ जो भी एक्शन होता है वो लिया जाए। दूसरा, इसके अंदर में मैं ये भी चाहूँगा कि उसमें मैंने एक चीज़ सुनी थी, सिकंदर अली खान बोल रहा है कि उसने अपना पर्स खोल के दिखाया, उसमें 2-3 हज़ार रुपये थे। जब सामने वाले ने उससे 20-25 हज़ार रुपये मांगे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस सिकंदर अली खान उसको मेरे हिसाब से पैसे देने वाला था, तो वो क्यों पैसे देने वाला था? कुछ तो
क्राइम कुछ तो गलत किया होगा जो उसकी छुपाने के लिए उसने पैसे देने के लिए सामने वाले को कोई चीज़ को दबाने के लिए कुछ किया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई पुलिस इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करे कि वो जो बंदा सिकंदर अली खान है वो किस लिए उसको पैसा देना चाहता था, क्या मैटर वो उसको पटवा के ख़त्म करना चाहता था। तो हमें चाह रहे हैं कि नाजिम पठान और रुखसार पठान पे FIR ऑलरेडी हो चुकी है, उसके तहत जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए, जो भी कानून के मुताबिक जो भी इन्वेस्टिगेशन। ये भी है कि आज जर्नली अगर हम देखते हैं कि कोई भी आज रिपोर्टर तरीके या कोई भी किसी भी पद पे अगर आज कोई भी पत्रकार काम करता है तो अगर वो कुछ भी गलती करता है तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि जो हम उसके ओनर हैं या चैनल हेड हैं उसको हम ये चीज़ पहले इंटीमेट करें कि भैया तुम्हारा बंदा इस तरीके की हरकत कर रहा है जो इलीगल है। तो वो आपकी नॉलेज में अगर वो हमारी नॉलेज में डाले और वो हमको अगर कोई भी चीज़ प्रूफ देते हैं तो हम खुद में साथ में चल के पुलिस में उसकी कंप्लेंट करानी चाहिए एज ए चैनल हेड, एज ए चैनल ओनर। बट उन्होंने डायरेक्टली न्यूज़ को पब्लिश किया, रफ्तार गुजरात को जानबूझ के हाईलाइट किया, उसको बदनाम करने की कोशिश की, जबकि जो बंदा दूसरे न्यूज़ चैनल का ID कार्ड यूज़ करके दूसरे न्यूज़ चैनल्स के अंदर में भी रिपोर्टिंग करता है उसमें खाली रफ्तार गुजरात को हाईलाइट करने का क्या पर्पज़ है। वो आज उन्होंने एक और न्यूज़ पब्लिश की, जब उनको शायद पता लगा होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनका जो फरियादी है सिकंदर, वो बंदे ने 10 से 15 बार रफ्तार गुजरात के नाम को हाईलाइट किया और उनके जो ओनर है फ्लैश हैंड के वो उसमें ये बोल रहे हैं कि फरियादी ने इतनी इंक्वायरी करके, वो पेपर दिखा रहे हैं, फरियादी ने इंक्वायरी की, सर्च आउट किया कि वो कौन से न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं। तो फरियादी को मैं ये जानना चाहता हूँ कि फरियादी को प्रॉब्लम रफ्तार गुजरात से थी या बंदे से प्रॉब्लम थी उनको। सेकेंडली एक चीज़ मैं पुलिस प्रशासन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आज इस मामले को मैं चाहता हूँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, जो भी इसके अंदर में दोषी हैं, जो भी ये स्टिंगर तरीके से जो काम करते थे, रुखसार पठान, नाजिम पठान, उनके खिलाफ जो भी एक्शन होता है वो लिया जाए। दूसरा, इसके अंदर में मैं ये भी चाहूँगा कि उसमें मैंने एक चीज़ सुनी थी, सिकंदर अली खान बोल रहा है कि उसने अपना पर्स खोल के दिखाया, उसमें 2-3 हज़ार रुपये थे। जब सामने वाले ने उससे 20-25 हज़ार रुपये मांगे तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिकंदर अली खान उसको मेरे हिसाब से पैसे देने वाला था, तो वो क्यों पैसे देने वाला था? कुछ तो क्राइम, कुछ तो गलत किया होगा जो उसकी छुपाने के लिए उसने पैसे देने के लिए सामने वाले को कोई चीज़ को दबाने के लिए कुछ किया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई पुलिस इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करे कि वो जो बंदा सिकंदर अली खान है वो किस लिए उसको पैसा देना चाहता था, क्या मैटर वो उसको पटवा के ख़त्म करना चाहता था। तो हमें चाह रहे हैं कि नाजिम पठान और रुखसार पठान पे FIR ऑलरेडी हो चुकी है, उसके तहत जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए, जो भी कानून के मुताबिक जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर में जो भी उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं। साथ साथ में जिसने फरियाद की है, जिसने पैसे देने की बात की, क्योंकि हम देखते हैं जनरली आज फरियाद जो होती है ना वो पत्रकार के ऊपर होती है। पत्रकार के ऊपर फरियाद क्यों होती है? दूसरा जो उसको पैसे देता है उसके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाता? वो किस चीज़ को दबाने के लिए देता है? आज अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी चीज़ चला रहे हैं, सामने पुलिस खड़ी है, अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो हमको कोई डर नहीं होता। हमको डर कब होता है? मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए मेरा पोल्यूशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो हमारे अंदर में कहीं पे गलती होती है तो हमको डर लगता है। तो ही आदमी वहाँ पे रिश्वत देने की कोशिश करता है, 1000 का काम 500 में पटाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो ऐसा मैटर हुआ होगा ना। तो मैं इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमिश्नर साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो इस चीज़ के अंदर में पर्सनली बटवा पुलिस स्टेशन में और जो भी इसके तहत कार्रवाई बनती है वो प्रॉपर इस मामले की तह तक जाए। और दूसरा, जो ये असामाजिक तत्व जिस तरीके से इसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसके लिए हमने डेफामेशन के तहत हमने लीगल नोटिस भेज दिया है। मेरे साथ में सीनियर एडवोकेट प्रमोद गुप्ता जी हैं जिनके थ्रू हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है। बाकी की लीगल की जो भी चीज़ें हैं वो गुप्ता जी आपको बताएंगे कि इसके अंदर में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर में साथ में हमने बटवा पुलिस स्टेशन में उन दोनों चैनल के खिलाफ, फ्लैश एंड लाइव और AR भारत लाइव, दोनों के खिलाफ हमने अर्जी भी दी है कि उन्होंने बिना हमारी नोटिस के, बिना हमारी नॉलेज के हमारा बैनर बदनाम करने की कोशिश की और इनडायरेक्टली वे में हमको धमकी दी। और साथ के साथ में जो दूसरा, आज अगर हम देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस को भी गुमराह किया, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से जो न्यूज़ चलाई उसके अंदर में वो हर बार रफ्तार गुजरात को लेके चलाते रहे। तो पुलिस
उसके अंदर में भी जब FIR उनकी हुई अभी पीछे 5-6 दिन पहले, तो उसमें भी उन्होंने रफ्तार गुजरात का नाम मेंशन कर दिया विदाउट एनी एविडेंस। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी उन्होंने गुमराह किया है, और उसने ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने एक ही न्यूज़ को पलट पलट करके 2 से 3 बार चलाया। फिर 4-5 दिन के बाद में AR भारत लाइव पे वो न्यूज़ चलाई गई, सेम न्यूज़ को बैनर चेंज करके, और उसके अंदर में हमारा रफ्तार गुजरात का नाम दिया गया। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो भी इस तरीके के चैनल है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेट की जाए कि वो एक तो चैनल लीगल है कि नहीं है, वो प्रॉपर अपने प्लेटफॉर्म पे सही चला रहे हैं, और इस तरीके की वो चीज़ें अगर कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल एज ए स्टिंगर रिपोर्टर कोई भी अगर क्राइम करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसके ऊपर इंडिविजुअल एक्शन होना चाहिए। उसके लिए कोई भी बैनर जवाबदार नहीं होता है, क्योंकि बैनर कोई भी होता है, चाहे आज हम कोई भी छोटी मीडिया हो, बड़ी मीडिया हो, कोई भी हो, सब अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके रखते हैं। आप देखेंगे आपको ये फॉर्म, जिसके अंदर में हमने ईच एंड एवरी थिंग मेंशन की हुई है। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके ऊपर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो कोई भी अगर दूसरे न्यूज़ चैनल के नोटिस में कहीं पे भी कुछ गलत आता है, तो सबसे पहला दायित्व ये बनता है कि आप उस चीज़ को दूसरे जो न्यूज़ चैनल के ओनर है, चैनल हेड है, उसको इंटीमेट करें। उसके बाद उसके साथ में मिलके उसकी कंप्लेंट करें। इंडिविजुअल के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी अगर पुलिस का भी अगर कोई भी नीचे अधिकारी कोई गलत काम करता है तो उससे पुलिस प्रशासन बदनाम नहीं होती है, उसके अंदर में उस पुलिस का जो भी अधिकारी होते हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो इसके अंदर पे भी मैं यही चाहूँगा कि जो भी जिन्होंने भी अगर गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बट यहाँ पे इनडायरेक्टली वे में हमारे बोलने के काफ़ी बावजूद भी उन लोगों ने इस चीज़ को बार बार चलाया, और अभी भी इस चीज़ को वो चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लीगल तरीके से तो बढ़ ही रहे हैं, हम कानूनी तरीके से जो हम हमारे वकील साहब जवाब देंगे कि हमने डेफामेशन का आगे का हम जो भी प्रोसेस है वो पूरा करेंगे उनके खिलाफ। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके की चीज़ों को हाईलाइट करें, ताकि इस तरीके के जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी इस तरीके की रूमर फैला रहे हैं, जिससे कि कहीं भी आज हमारा ब्रांड खराब कर रहे हैं, कल को किसी और का करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ों पे रोक की जाए। धन्यवाद। नमस्कार, મારું નામ પ્રમોદ ગુપ્તા, એડવોકેટ સિનિયર લોયર છું, ગીર કટારે સિટીસીમાં વકીલાત કરું છું। અમારા રફતાર ગુજરાતના ચીફ એડિટર મુકેશભાઈ ગોયલે જે આપણે સમક્ષ જે વાત મૂકી છે, જે એમની બદનામી થઈ છે સોશિયલ મીડિયા મારફતે, 2 ન્યૂઝ ચેનલ AR ભારત ન્યૂઝ કે જેઓએ 15/1/25ના રોજ ન્યૂઝ ખોટી રીતે ચલાવેલી, કોઈ પણ જાતના આધાર વગર, પછી ફ્લેશ હેડ લાઈવ ન્યૂઝ એમને 11/1/25ના રોજ અમારા રફતાર ગુજરાતના ચીફ એડિટર